Hello, my dear students. How are you? Welcome to the beautiful channel Padhai Ka Kavach. Myself Tosip sir, and I would like to welcome you all in this social science lecture. Students, today we are going to discuss about unit number 10, India Agriculture. And in the agriculture section, we will discuss about hot beverages which is cultivated inside our India. So first, hot beverages, the drinkable beverages like tea, coffee and cocoa. So first of all, let us discuss about tea without wasting our time. टी इज अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन, यानी कि गर्म प्रदेश होते हैं वहां का ये प्लांट है. द टी लीफ एंड इट्स टेंडर स्प्रोट्स आर प्रोसेस्ड एंड इट्स पाउडर एंड स्मॉल लीव्स आर यूज्ड इन ड्रिंक्स. मीन्स एज वी नो, the leaves of the tea is not utilized directly in the to making a tea, okay, but the granules after the processing of the tea leaves is utilized to making a tea drink, okay. India produces maximum tea after China. So after the China, we will we are producing a major amount of tea, which is in a second place. Sri Lanka, China and India are leading tea exporters. Slopy land where the water easily flows down, good iron contain 20 to 30 degrees Celsius temperature and 200 centimeter of rainfall coming in the form of showers throughout the year are favorable conditions for tea plantation. Tea is grown more in Assam, West Bengal, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu and Karnataka. Assam and West Bengal produce 75% of tea of the nation. The tea leaves are very skillfully plucked from the plants. So students, these are the major state which will grow the tea crop: West Bengal, Assam and Uttar Pradesh as well as Tamil Nadu. And major of the tea is produced in Assam and West Bengal because it will hold the 75% of tea production of whole nation, okay. Then after, coffee. Coffee is reared over the slopes of mountains in the shades of larger trees in such a way that no direct sunlight falls on the coffee leaves. Means here, students, if you see, the coffee leaves are cultivated under the shades of tree, यानी कि पेड़ों के छांव में इसका जो कल्टीवेशन है इसको उगाया जाता है. द कॉफी क्रॉप नीड्स 150 to 200 centimeter rainfall and 15 to 28 degree Celsius temperature and slopy mountain land. The coffee crops require more amount of rainfall. So, students, the coffee cultivation is very difficult because it requires a certain temperature range as well as it does not require a direct sunlight. So to cultivate a coffee crop, we need to grow a more number of trees which is having a more width, because under the shade of tree we only grow the coffee plant. It requires heavy rainfall up to 150 to 200 centimeter, okay, and the slopy land is needed for the production of coffee. So here you see the coffee crops, the slopy land, the beans of coffee, the ready-made coffee, okay, here it is, and the woman which is plunking the coffee beans. Coffee is grown in abundance in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Kurg area of Karnataka is a well-known region for coffee production. जो कर्नाटक का कुर्ग प्रांत है वो कॉफी के लिए बड़ा ही विख्यात है. Coffee seeds are extracted out of the nuts, grinded and then it is used as a drink. As we know, students, the coffee beans are directly not utilized to make a coffee, but the coffee beans are first dried, then after it is processed, and then the converted granule form coffee we are utilizing as a drink. Then after, cocoa. Cocoa is prepared out of the seeds of the cocoa fruit. Cocoa fruit में से cocoa जो है वो निकाला जाता है. It is a beverage. Cocoa is a beverage, but sometimes as a raw material it is utilized inside the chocolate, which is already mentioned. It requires hot and humid climate and excessive rainfall. African countries majorly producing this cocoa, okay. Cocoa production is more in Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. So the southern states of India are manufacturing major amount of cocoa.
Moving forward, students, we will discuss about cash crops. Here the hot beverages sections is over, in which we have discussed about tea, coffee and cocoa. Most of the crop, students, if you observe, it requires a heavy rainfall, sloppy land and 15 to 13 degrees Celsius temperature. So you should write these conditions for all three crops. There is no change in the climatic conditions, right? As well as one thing you should specifically write in the coffee cultivation, that it requires a shaded trees, tree shades for the proper cultivation. No direct sunlight is allowed because it requires a certain type of care. Okay. Then after, students, let us start about cash crops. यानी कि ऐसी फसल है कि जिसमें से डायरेक्टली इनकम हो सके, या तो इनकम का स्रोत जो है वो सबसे ज्यादा हो, इस ऐसे क्रॉप्स को कहा जाता है कैश क्रॉप्स. कॉटन इज अ खरीफ क्रॉप. कॉटन जो है वो मॉनसून के अंदर उगाने वाला एक क्रॉप है. कॉटन होल्ड्स एन इंपॉर्टेंट प्लेस एज कैश क्रॉप्स इन गुजरात एंड इंडिया. वर्ल्ड लेवल के अंदर भारत का प्रोडक्शन इसमें दूसरे पायदान के ऊपर है. कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. कॉटन प्लांट में से कॉटन को उगाया जाता है. दिस कॉटन इज नोन एज व्हाइट गोल्ड इन इंडिया. सफेद सोना इसे कहा जाता है. बिसाइड्स द कॉटन सीड ऑयल इज यूज्ड टू प्रिपेयर एडिबल ऑयल and its seeds and oil cake are used as animal food. Students, as we know that we are eating the cotton oil, જેસે હમ ગુજરાતીમાં કપાસનું તેલ પણ આપણે કહીએ છીએ. તો કપાસના તેલનો ઉપયોગ ખાવાની અંદર આપણે કરીએ છીએ. Parallelly, the excreta which is remaining after excrete out the oil, यानी कि जो कपास के प्लांट्स होते हैं उसमें से तेल निकालने के बाद जो भी मैटर बचती है, उसका इस्तेमाल एनिमल फूडर यानी कि पशुओं को चारे के तौर पे दिया जाता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लैंड रिक्वायरमेंट. व्हिच काइंड ऑफ लैंड इज बेनिफिशियल फॉर द कैश क्रॉप्स? ब्लैक लावा सॉइल which can retain the humidity, 20 to 35 degrees Celsius temperature and 30 to 70 centimeter rainfall and plenty of mineral contents are required for the cultivation of cotton crops. The growing season for cotton is about 6 to 8 months. So basically in the starting of the monsoon these crops are cultivated and by starting of winter this crop is harvested. Frost damages the cotton crop. ज़्यादातर ठंड है वो कॉटन के क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है इसका कल्टीवेशन जो है वो मॉनसून के अंदर और विंटर के स्टार्टिंग में ही कर लिया जाता है. गुजरात ने मेजर स्टेट ये डिस्कस करना रह गया यहाँ से. इन इंडिया मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, प्लीज एनलिस्ट और प्लीज रिमेंबर एटलीस्ट 4 नेम्स. डू नॉट रिक्वायर, इट इज नॉट रिक्वायर द ऑल स्टेट टू रिमेंबर. ओके, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना and Karnataka. Please remember this 4 states. Okay, these are the major cotton producing states. गुजरात तो याद रहेगा ही, महाराष्ट्र हमारे पड़ोसी राज्य है, तेलंगाना और कर्नाटका ये एक दूसरे से जुड़े हुए राज्य. ठीक है, या तो आप राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात भी ले सकते हो. दैट्स इट. गुजरात के फार्मर्स ने, यहाँ के किसानों ने एक कपास की बहुत अच्छी सी प्रजाति जो है वो विकसित की थी, बीटी कॉटन जिसे कहा जाता है. गुजरात स्टैंड फर्स्ट इन इंडिया इन एरिया शॉन, प्रोडक्टिविटी, टोटल प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ कॉटन. गुजरात जो है इसके अंदर सबसे पहले पायदान के ऊपर है, इसके प्रोडक्शन में, प्रोडक्टिविटी में और इसका एरिया जो है उसके अंदर. कॉटन इज ग्रोन मोर इन सुरेंद्रनगर, राजकोट, वडोदरा, सभी जिले इसके अंदर आ गए हैं. आप जिलों का नाम एक बार देख लेना. जिले के अंदर गुजरात के 4 या तो 5 जिले जो भी आपको याद हो, 2 नगर याद रख लो, सुरेंद्रनगर, भावनगर, ठीक है, जूनागढ़, अमरेली, सौराष्ट्र याद रख लो, हो गया काम आपका. सो दिस आर द मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इनसाइड द गुजरात. तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस मैप में, जो पिंक कलर है वो कॉटन का है एंड द कॉटन इज ग्रोइंग ऑन द मेजर पोर्शन ऑफ गुजरात एज यू सी. खाली जो कच्छ और नॉर्थ गुजरात का कुछ हिस्सा है वहीं पे कॉटन नहीं उगाया जाता, बाकी मोस्ट ऑफ द एरियाज के अंदर कॉटन को उगाया जाता है. ठीक है. देन आफ्टर द शुगर कैन, the raw material for sugar, गुड़, खांडसरी एंड इथेनॉल. ओके, ये सबसे महत्वपूर्ण क्रॉप है. इंडिया जो है उसका क्रम ब्राजील के बाद दूसरा है शुगर कैन के प्रोडक्शन में. नाउ लेट अस टॉक अबाउट विच आर द फेवरेबल क्लाइमेटिक एंड लैंड कंडीशन इज नेसेसरी फॉर शुगर कैन.
Black fertile alluvial lava soil is required for the sugarcane production. Hot and humid climate मतलब गर्म और ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला क्लाइमेट इसको अच्छा माफक आता है. 21 to 27 degree Celsius temperature and moderate 75 to 100 centimeter rainfall is required for the production of sugarcane. Okay. Uttar Pradesh is at the top on area shown, but Maharashtra leads in the production. महाराष्ट्र जो है वो उसके अंदर लीड करता है शुगर के प्रोडक्शन में, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा शुगर कैन को कल्टीवेट किया जाता है. साउथ गुजरात एंड सौराष्ट्र प्रोड्यूसेस मोर शुगर कैन इन गुजरात. दक्षिण गुजरात के अंदर यानी कि साउथ गुजरात के अंदर सूरत, चिखली, नवसारी, तापी, इन सारे जिलों के अंदर शुगर कैन के बड़े बड़े फार्म्स है, वहां पे इसका प्रोडक्शन किया जाता है. देन आफ्टर स्टूडेंट्स द अनदर कैश क्रॉप इज जूट. ये ऐसे क्रॉप्स है कि जिसमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बनती है, या तो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है, या तो इसमें से सबसे ज्यादा इनकम होती है. तो जूट इज वन ऑफ दैट मटेरियल. इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम ऑफ जूट इन द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जूट उगाने वाला अगर कोई राष्ट्र है तो वो भारत है. खुशनसीब है कि एक क्रॉप में तो हम जो है वो पहले पायदान के ऊपर है, बाकी चाइना और ब्राजील ही लीड कर रहे हैं, जैसा कि आप देखते हो, पहले हमने देख लिया. जूट फाइबर इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर. इससे पहले हमने पढ़ा था व्हाइट गोल्ड. द कॉटन क्रॉप इज कॉल्ड एज व्हाइट गोल्ड while the jute is considered as a golden fiber. Why it is? Let us try to understand. Jute cloth, gunny bags, mattresses, ropes, bags, footwears, handicrafts items, etc. are made from jute. India has a strong competition from Bangladesh with regards to cheap labor in jute industry. यहाँ पे just की जगह jute कर दीजिएगा. भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ बड़ी स्पर्धा के अंदर है, कंपटीशन के अंदर है, क्योंकि वहां पर भी जूट का प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है. Jute requires fertile soil of delta region where new sediments is deposited every year. Hot and humid climate, 30 to 40 degrees Celsius temperature. So, the required land condition for the jute is the type of land which will deposit a new sediments every year. यानी कि जहां पे हर साल बाढ़ की वजह से जो जमीन धस के आती है वो एरिया उसको ज्यादा सुटेबल होता है. And that kind of land is majorly available student in the West Bengal, because from the West Bengal the Ganga will meet to the sea, Bay of Bengal को मिलती है वहां पे. तो वहां पे हर साल गंगा का बहाव जो है वो नई जमीन जो है वो अपने साथ लेके आता है. That is why West Bengal is producing major amount of jute inside our India. And 100 centimeter rainfall is required. Jute is grown more in Ganga Delta in West Bengal, as I already told. Assam, Bihar, Orissa and Uttar Pradesh. ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में ही उगाया जाता है इसको. Okay? So this is the all about cash crop jute. Then after students, tobacco. Tobacco is a खरीफ crop. मॉनसून सीजन के अंदर उगाया जाने वाला एक crop है. Sandy, loamy soil, 20 degree Celsius temperature and 100 centimeter rainfall are suitable for tobacco cultivation. यानी कि तंबाकू के पाक को उगाने के लिए 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान, थोड़ी रेत सी जमीन उसको रिक्वायर्ड है, जो कि गुजरात के अंदर आणंद, खेड़ा, नडियाद इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा अवेलेबल है. और उसी की वजह से गुजरात के अंदर 80% जितना टोबैको का प्रोडक्शन होता है. यहाँ पे देखो लिखा हुआ है about 80% of BD tobacco of India is produced inside the Gujarat. It all thanks to the sandy loamy soil of चरोतर region. चरोतर प्रदेश, ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट है इसको चरोतर प्रदेश के नाम से जाना जाता है. ठीक है, आणंद, वडोदरा, नडियाद एंड खेड़ा. Major 4 countries in the world which grow and export tobacco is China, Brazil, India and USA. Okay. Apart from this, Gujarat, AP, UP and Karnataka is also major producing states of our India. Majorly, tobacco is used to make gutkha, बीड़ी cigarette, snuff, यानी कि अफीम, etc. I think I don't want to discuss this things in a detail because you already aware about it. Gutkha, बीड़ी, cigarette, etc. Tobacco consumption is harmful to health. Sikkim is the first state to ban tobacco गुटखा. ये एक खास नोट करने वाली चीज़ है कि सिक्किम ऐसा पहला राज्य है कि जिन्होंने
टोबैको यानी कि तंबाकू के ऊपर प्रतिबंध लगाया। उसके बाद है रबर। Rubber is prepared out of milk oozing out of the latex trees. Means the type of trees which will give the ooze of milk. यानी कि सफेद कलर का ऐसा लिक्विड जो लेटेक्स वृक्षों के अंदर से टपकता है, उसमें से रबर को बनाया जाता है। एसिटिक एसिड विल मिक्स, क्योंकि रॉ मटेरियल के तौर पे किसी भी सब्सटेंस को हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। हम जो मेटल जिस फॉर्म में मिलती है उसी फॉर्म में भी उसे इस्तेमाल नहीं करते। ईच एंड एवरीथिंग which is available as a raw material, we should process it and then after we only utilize it. Okay. So after heating, adding acetic acid and heating at a low temperature, and then after we will obtain the rubber. It is used in many industrial products like tires, tubes and etc. Rubber plantation is carried out in the regions of hot and humid climate and heavy rainfall. Malaysia ranks first in the world in rubber production. यानी कि रबर के उत्पाद में मलेशिया सबसे पहले क्रमांक के ऊपर आया है। उसके बाद है कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस, औषधीय कुछ पदार्थ और मसाले। गुजरात रैंक्स फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कमिन सीड्स, फेनल सीड्स एंड इसबगुल, यानी कि जीरू और वरियाली जिसे हम कहते हैं, और इसबगुल, उसके प्रोडक्शन में गुजरात का स्थान सबसे पहला है दुनिया में, दुनिया के अंदर, खास ध्यान रखना। Besides this, India leads in the production and export of dried coriander, fenugreek, mustard, suwa and ajwain. These are the condiments. India contributes about 35% in the total world production of condiments. यानी कि औषधीय जो भी substances है, इनके प्रोडक्शन में भारत अपना 35% योगदान देता है। Indian black pepper, cinnamon, clove, etc. are in high demand in the country and the world. इस चीज़ों से प्रेरित होके ही अंग्रेज, डच, हॉलैंड और फ्रांस के लोग जो थे वो भारत में राज करने के लिए आए थे। अश्वगंधा, तुलसी, करियातू, भिंडी आवड़, व्हाइट मुसड़ी, मधुनशनी, अशोक, गरमड़, लिंडी पीपर, गड़ो, एलोवेरा एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड एज मेडिसिनल प्लांट्स एंड मिंट, मेंथोल, पल्मरोजा, लेमन ग्रास एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड एज फ्लेवर्ड क्रॉप्स। यानी कि ऊपर दिए गए जो आपको पदार्थ मैंने बताया, मींढी आवड़, व्हाइट मूसली, गरमड़, ये मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और मेंथोल, पल्मरोजा, लेमन ग्रास, ये सभी फ्लेवर्ड क्रॉप्स हैं। उसके बाद है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। इन फ्रूट प्रोडक्शन इंडिया रैंक्स सेकंड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद भारत का नंबर जो है वो दूसरा है। फ्रूट्स लाइक बनाना, मैंगो, एप्पल, ग्रेप, नाशपाती, ऑरेंज एक्सेट्रा आर ग्रोन इन इंडिया। तो आई थिंक आपको इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी। बनानाज आर ग्रोन इन तमिलनाडु, गुजरात एंड महाराष्ट्र। हाँ, ये एक नोट करने लायक बाबत है। केले जो है वो तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादातर उगाए जाते हैं। सेब जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ग्रेप्स जो है वो उत्तराखंड के अंदर उगाई जाती है, वहाँ से उत्तराखंड, महाराष्ट्र, एचपी, हिमाचल प्रदेश, JNK, जम्मू कश्मीर, पंजाब, तमिलनाडु एंड AP, आंध्र प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रेप्स का उत्पादन होता है। As the grape production is less than its demand, it is imported from Afghanistan, Pakistan and Australia. जितनी ग्रेप्स का प्रोडक्शन हमारे भारत में होता है उतना इनफ हमारे लोगों के लिए नहीं है, इसलिए इसको ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से इंपोर्ट किया जाता है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी ऑफ द फ्लावर्स आर ऑल्सो ग्रोन इन इंडिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस ऑफ इंडिया। जो खेती में से मिलने वाली चीज़ें हैं वो यहाँ पे ख़त्म होती है। हमने कैश क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ा, रबर, टोबैको, कॉटन, ऑयल सीड्स के बारे में पढ़ा, फूड ग्रेन के बारे में पढ़ा और कॉन्डिमेंट्स और स्पाइसेस के बारे में भी पढ़ा। सो यहाँ पे ये सेक्शन ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है वो है टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। जो तकनीकी और संस्थागत सुधार हुए हमारे भारत के अंदर कृषि में, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो स्टूडेंट्स, हमें ये पहले पैराग्राफ में ये समझाया गया है, प्रायरली व्हेन द इंडिया वाज बिकम इंडिपेंडेंट, at that time the farmers are utilizing the traditional equipments for the cultivation of crops, but as the revolution start, as the society grown, the various kind of modern equipments are utilized inside the agriculture, like harvester, thresher, many seed drills, cultivators are comes into the picture, which will
लेसन द बर्डन ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम द फार्मर्स, यानी कि उसकी वजह से जो फार्मर्स को है एक भार खत्म हो गया, क्योंकि थ्रेशर और हार्वेस्टर है ये एक ऐसी शोध है कि जिसकी वजह से किसानों का जो हार्वेस्टिंग में टाइम जाता था, थ्रेशिंग में टाइम जाता, वो खत्म ही हो गया। डायरेक्टली जब हार्वेस्टिंग हो जाए तो उसके बाद थ्रेशिंग होकर डायरेक्टली रेडीमेड ग्रेन्स आपको मिलते हैं, जैसे कि वीट है, पैडी है, शुगर कैन है, सभी। ओके, and certain time of chemical fertilizers as well as insecticides and pesticides are also comes into the picture after the revolution, यानी कि बदलाव होने के बाद अभी के ज़माने में कई सारे केमिकल फर्टिलाइजर्स जो खाद है वो भी पिक्चर में आए, वो उसका भी उपयोग काफ़ी बढ़ा, कीटनाशक कई सारे इस्तेमाल किए गए कि जिसकी वजह से जो किसान है वो कई सारी दिक्कतों से पार आ गया, यानी कि कभी कोई इंसेक्ट का हमला हो और उसकी वजह से पूरी फसल को वो खा जाए, फिर केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल ना करने से फसल कम मिले, तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो थे वो प्रॉब्लम खत्म हो गए। सो दिस आर सम glimpses of reform. Now let us talk about in detail about the technical reforms which will come after the independence. What is considered as a technical reforms? The reforms in seeds, fertilizers and farm implements in India are known as technical reforms. यानी कि कभी भी डेफिनेशन में भी पूछा जाए कि टेक्निकल रिफॉर्म्स का मतलब क्या, तो टेक्निकल रिफॉर्म्स का मतलब होता है कि जो प्लांट के सीड्स है, खाद है और फार्म इम्प्लीमेंट्स है उसके अंदर सुधार हुए, उसे टेक्निकल रिफॉर्म्स कहा जाता है। So students, first reform is monoblock pump, submersible pump, solar pump and drip irrigation and sprinklers. The modern method of irrigations are developed under which the farmers are having a very easiness to grow any kind of crop during the entire year. Second is the utilization of chemical fertilizers like DAP, diammonium phosphate, phosphorus, potash and nitrogen are utilized as a biofertilizers, and also the liquid fertilizers as well as biotech seeds are used, and with the effect of this kind of chemical fertilizers the production of the agriculture produces are very much huge or continuously increasing. Third reform is the government take an initiative to help the farmers in such a way that they will provide a newspapers, some kind of channels like DD Kisan channel, SMS सुविधाएं कि जहां से किसान जो है वो टोल फ्री नंबर के ऊपर फोन करके पूछ सकता है कि कौन सा क्रॉप जो है वो कल्टीवेट किया जाए, किस में से हमें ज़्यादातर इनकम होने के चांसेस है, किस तरीके से हम अलग अलग लोन की सुविधाएं है वो ले सकते हैं। उसके बाद है न्यू एग्रीकल्चर रिसर्च एंड न्यू टेक्निक्स आर कन्वेड टू द फार्मर्स इन द विलेजेस बाय ग्राम सेवक। ग्राम पंचायतों के अंदर जो ग्राम सेवक है वो अलग अलग तरीके से नई नई टेक्निक से किसानों को सेवा करता है, उसकी मदद करता है कि कैसी कैसी गवर्नमेंट की सुविधाएं आप ले सकते हो, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है वो आपको हेल्पफुल है। अपार्ट फ्रॉम दिस द फर्दर टेक्निकल रिफॉर्म्स आर farmer training centers are established by the government to train the farmers how to select the crops, how to cultivate the crops with the help of chemical fertilizers and bio fertilizers. Okay, किसान मेले जिसका आयोजन सरकार के द्वारा हर महीने और 2 महीने तक किया जाता है हर जिले के अंदर। द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिशमेंट थ्रू द agriculture scientists are produced or graduate and they will help the farmers to further in their crops. Besides this, certain kind of institutions are also established by the government like ICAR, Indian Council for Agriculture Research, यानी कि कृषि के अंदर संशोधन के लिए जो संस्था है उसे ICAR कहा जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन आर एक्टिव एट नेशनल लेवल, यानी कि गवर्नमेंट ने भी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये चीज को जाना है कि किसानों को मदद के लिए, संशोधन के लिए अलग अलग बीज, अलग अलग फर्टिलाइजर किस तरीके से उनको मदद रूप है, उसके लिए ये संस्थाएं चालू की है। दिस इज ऑल अबाउट टेक्निकल रिफॉर्म्स। टेक्निकल रिफॉर्म्स यानी कि किसानों को किस तरीके से जानकारी दी जाए उसके अंदर के रिफॉर्म्स। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स दैट द गवर्नमेंट ब्रिंग इज द गवर्नमेंट डिस्कार्डेड द लैंडलॉर्डिज्म, यानी कि जमींदारी प्रथा नाबूद की। ठीक है, तो अब ये जानते हैं हम कि स्टूडेंट्स व्हाट इज कंसिडर्ड एज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स।
द रिफॉर्म्स कनेक्टेड टू द लैंड ओनरशिप, यानी कि जमीन की मालिक किसकी होगी, क्रॉप सब्सिडी, यानी कि फसल अगर बर्बाद हो जाए या तो फसल उगाने के लिए कोई आपको सुविधा की जरूरत है, सब्सिडी की जरूरत है, वो कैसे मिले, एंड सेल ऑफ फार्म प्रोड्यूस आर कंसिडर टू बी द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि तैयार प्रोडक्ट्स जो है उसे कैसे मार्केटिंग यार्ड में बेचा जाए, इन सभी को गिना गया इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के अंदर। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, फर्स्ट गवर्नमेंट डिस्कार्डेड द लैंडलॉर्डिज्म, यानी कि जमींदारी प्रथा नाबूद की, एंड लैंड टू द टिलर, ये एक्ट को लाया गया कि जो जमीन के अंदर फसल उगाएगा वो उसकी जमीन होगी, ठीक है, जमींदारों की जमीन नहीं होगी। सेकंड है द डिस्पैरिटी अमंग द लैंड ओनर्स हैज बीन रिमूव्ड बाय लैंड सीलिंग एक्ट, यानी कि जमीन की जो असमानता है उसे लैंड सीलिंग एक्ट से मर्यादित किया गया, यानी कि किसी लोगों के पास 100-150 एकड़ जमीन होती है और किसी के पास 1-2 एकड़ होती है, तो इसको नाबूद किया गया लैंड सीलिंग एक्ट से। उसके बाद फार्मर्स आर प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल हेल्प फॉर क्रॉप सब्सिडी बाय किसान क्रेडिट कार्ड एंड नेशनलाइज्ड एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, बैंकों के द्वारा किसानों को सब्सिडी की सुविधाएं और लोन की सुविधाएं। फॉर आफ्टर दैट फुल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रॉप्स थ्रू प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, किसानों के लिए संपूर्ण तौर से प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसको इंप्लीमेंट किया गया। अगर कोई फसल जो है वो बर्बाद हो जाए सूखे के कारण या तो ज्यादा बारिश के कारण जो भी हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर किसानों को आर्थिक सहाय सरकार के द्वारा मिलेगी, जो अभी गवर्नमेंट जिसके ऊपर काम कर रही है इस साल। By providing legal support and open auction process is made widespread for the sale of farm produce in the marketing yards, यानी कि मार्केटिंग यार्ड में खुले में ही बिक्री करना किसानों के सामान की, जिससे एक प्रकार की निष्पक्षता रहे दामों के अंदर। Facilities like cooperative society, market associations, cooperative warehouses, cold storage and this kind of facilities are provided to the farmers to get the minimum support price of the farm products, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे ऐसे वेयर हाउसेस, ऐसे सोसाइटियां, ऐसे सहकारी जो फर्म है ये निर्माण किया गया कि जिसकी वजह से किसान जो है वो अपने फार्म प्रोडक्ट्स को बेच सके। 3 खास करके संस्थाएं डेवलप की गई जो सपोर्ट प्राइस के ऊपर किसानों की प्रोडक्ट्स को खरीद सके। पहला, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नाफेड जिसे कहा जाता है। उसके बाद है गुजरात कोऑपरेटिव ऑयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन, ग्रोफेड जिसे कहा जाता है। थर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, एनडीडीबी जिसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब होता है हरित क्रांति। ग्रीन रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन अवर कंट्री इन द डिकेड ऑफ 1960। 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, इन विच द गवर्नमेंट इज एम्फासिस और tell the farmers that they will use maximum amount of chemical fertilizers, insecticides and certain kind of irrigation system, and government is also supporting the farmers by giving various irrigation facilities. But the main aim of government is to encourage farmers to increase their cultivation, यानी कि उसके उत्पाद को बढ़ाना है, क्योंकि हमारा भारत जो है आजादी के बाद अपने खुद के अनाज के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट था। सो व्हाट इज द एक्टिविटीज आर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन, लेट अस स्टडी। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंक्रीज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ इंप्रूव सीड्स, इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंटेंस एफर्ट ऑफ द फार्मर्स, widespread arrangement of the electricity distribution, improved facilities in irrigation etc. is known as green revolution। यानी कि बढ़े हुए केमिकल फर्टिलाइजर का ज़्यादातर उपयोग, फार्मर्स की कड़ी मेहनत, इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बड़ी सुविधा और सिंचाई के लिए बढ़ी हुई व्यवस्थाएं, इन सभी के मदद से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर बढ़ावा हुआ उसे जाना गया ग्रीन रेवोल्यूशन से। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन वाज टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, यानी कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन उद्देश्य था वो किसानों का जो उत्पाद था उसे बढ़ाना। फार्मर्स वेर एनकरेज टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्टिसाइड्स मोर
दिस लीड टू अटेन द टारगेट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। किसानों को यही बढ़ावा दिया गया कि आप सबसे ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करो और इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग करो, कि जिसकी वजह से आपका उत्पादन है वो बढ़े। There has been a record production of wheat and paddy due to Green Revolution. So after the Green Revolution, the major hype in the wheat and paddy production due to the Green Revolution. Where there was a scarcity of food grains in the country, today there is a sufficient storage of the food grains, all thanks to Green Revolution. Once drought was hazard of regular interval of India, यानी कि सूखे की हालत कि जिसमें फार्मर्स जो है वो ज़्यादा क्रॉप कल्टीवेट नहीं कर पाते थे कम केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स के इस्तेमाल से, तो तभी सूखे की हालत आ जाती थी। जितने अनाज की ज़रूरत हो देश को, उससे कम अनाज उत्पाद होता था, इसलिए सभी लोगों को अनाज नहीं मिल पाता था। Its adverse effects are not seen after the Green Revolution. Due to the buffer stock of food grains, the condition of drought and scarcity are faced conveniently. यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बाद बफर स्टॉक यानी कि हमारे पास खेत उत्पाद इतना होने लगा, बढ़ने लगा कि सूखे की हालत बिल्कुल वैनिश हो गई, क्योंकि हमारे पास ही उत्पाद हुआ इतना क्रॉप था कि हम हर लोगों तक अनाज पहुंचा सकते थे। द सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स इज अ लैंडमार्क ऑफ हिस्टोरिक अचीवमेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी कि हमारे अनाज के लिए हम जो है वो आत्मनिर्भर बन गए, हमारे ऊपर ही डिपेंडेंट। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी भारत के लिए। नाउ स्टूडेंट, लेट अस स्टडी अबाउट द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना है। सबसे पहले तो इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अबाउट 1/2 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि हमारे पूरी कंट्री के जितने भी बस्ती है उससे आधे लोगों को ये रोजगारी देता है। टोटल जीडीपी में 17% इसका हिस्सा है। जो हमारे कैश क्रॉप्स हैं, पैडी, व्हीट, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट, शुगर कैन, टोबैको, पोटैटो एक्सेट्रा, उनमें से ज़्यादातर फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हमें मिलता है, यानी कि इसका एक्सपोर्ट करके वहाँ से जो हमें एक्सचेंज मिलता है उसका ज़्यादातर हिस्सा इन क्रॉप्स का होता है। कृषि उत्पाद में भारत का स्थान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर के ऊपर है। Industries like cotton textile, sugar paper, oil, etc., as well as the industries regarding the food processing get their raw material from agriculture products only. यानी कि जितनी भी इंडस्ट्रियां हैं, वो कॉटन की हो, पेपर की हो, शुगर कैन की हो, उसका मेजरली रॉ मटेरियल है वो इन कृषि उत्पाद में से मिलता है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स फूड टू द पीपल ऑफ इंडिया। सबसे महत्वपूर्ण, भारत के लोगों की अनाज की जो डिमांड है वो हमारा खेत उत्पाद पूरी करता है। Then after the Indian contribution is not consistent in the world agriculture market because of irregular and uncertain rain and inadequate facilities for irrigation. यानी कि सिंचाई की पूरी व्यवस्था ना होने के कारण भारत के अंदर जो है वो दुनिया के अंदर इतना स्थान नहीं बना सका जितना और देश बना चुके हैं। Food security is necessary for any country today if the demand for the food grain is increasing and if the food grains have to be imported then the political independence of the country may be at risk. यानी कि ये कहा गया है कि हमारी जो अनाज की मांग है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी बस्ती बढ़ रही है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि पहले जब आज़ादी का टाइम था तभी हमारी बस्ती जो थी वो 35 करोड़ थी, लेकिन अभी जो हमारी तादाद है, पॉपुलेशन है, वो 125 करोड़ हो गई है। तो अभी जब लोग बढ़ेंगे तो उनके लिए फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ेगी क्योंकि हर इंसान को 3 टाइम का खाना तो चाहिए ही चाहिए। सो ग्रीन रेवोल्यूशन तो हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जो है इस बढ़ती हुई मांग को संतोषकारक रीत से पहुंचना है और तभी हम वर्ल्ड मार्केट के अंदर खड़े रह पाएंगे। However, there has been an increase in the production of food grain in our country during last 5 years. तो यहाँ पे स्टूडेंट दिखाया गया है आपको कि पिछले 5 सालों के अंदर जो हमारा उत्पाद है वो बढ़ा है। 2009-10 में 218.11 टन करोड़ टन और वहां से ये ग्राफ बढ़ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस फ्लक्चुएशन होता रहता है, लेकिन हमारा ग्राफ जो है वो उत्पादन के अंदर बढ़ रहा है। With the food grain which we have today, the minimum requirement of the country can be fulfilled.
It is necessary to maintain buffer stock and to increase it. अभी जो हमारा उत्पाद है वो हमारे लिए तो संतोषकारक है, लेकिन हमें उस उत्पादन में बढ़ोतरी करनी होगी क्योंकि हमारी तादाद बढ़ रही है. By the buffer stock of the grains, the scarcity of the grains can be prevented during droughts or in the case of inadequate production of the food grains. The wastage of food grains can be prevented by implementing the techniques to preserve the grains in warehouses. The hunger of thousands of families can be satisfied if this buffer stock is distributed among them for free of charge. It is a strong necessary of the time to stop the wastage of food grains. It is necessary to strengthen food stocking and arrangements to conserve it. It is a good beginning that the government has made provision to supply the food grains up to the poor people through the Food Security Act. तो सिंपल कंक्लूजन ये 4 लाइनों का स्टूडेंट्स ये है कि जो हमारा उत्पादन होता है तो उसके लिए हमें स्टोरेज फैसिलिटी अच्छी बनानी होगी, क्योंकि अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी से हम फूड को स्टोर कर पाएंगे, फूड ग्रेन को, और अगर कभी भी ऐसी बिगड़ने की परिस्थितियां आ जाए तभी हम इनको जो नीडी पीपल है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनकी मांग को संतोषकारक रीत से कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर. ग्लोबलाइजेशन जो हुआ यानी कि वैश्विकीकरण, हमारी प्रोडक्ट्स बाहर बिकने लगी और बाहर की प्रोडक्ट्स हमारे यहाँ पे मिलने लगी. इट ऑल थैंक्स टू द ग्लोबलाइजेशन. सो व्हाट विल हैपन टू द इंडियन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, दैट ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन इंडियन फार्मर्स कैन सेल their farm products in the world markets, and because of this cotton, chilies and till are now available in the Chinese markets, and various fruits from the world are now available in the Indian market. Example, dragon fruit. The costly genetically modified BT seeds sold by the multinational companies are now available in India. कि जो बाहरी देशों के अंदर BT seeds मिलते थे वो अभी भारत के अंदर मिलने लगे हैं because of this globalization. Due to this, farming has become costly. The production of cotton and maize has increased. With the import becoming smoother, the domestic farm products have to be faced tough competition. Some products have gained global markets, hence the necessary for registration of their patents. यानी कि हमारे यहाँ पे जो सेब उगते हैं, जो मरी मसाले यहाँ पे उगते हैं, उसकी पेटेंट करवाना ज़रूरी है क्योंकि दूसरे देशों के अंदर इसकी बिक्री बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ की डिमांड भी ज़्यादा है. That is why it is necessary to register qualitative farm production as a national patent in the world market. क्योंकि भारत के जैसे ग्राउंडनट स्पाइसेस जो है वो दूसरी कई जगह पे नहीं मिलते. सो वी नीड टू पेटेंट इट. टू फेस द कंपटीशन इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन ग्लोबल मार्केट्स, इंडिया विल हैव टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड कंसंट्रेट ऑन क्वालिटी. हमें गुणवत्ता और तकनीकी बदलाव से हम हमारी मांग को बनाए रख सकते हैं पूरी दुनिया में. A series of planned steps will have to be taken to increase the economic prosperity and solidarity of people. यानी कि आयोजन पूर्वक के बदलाव से या तो स्टेप्स से हम हमारी आर्थिक जो प्रॉस्पेरिटी है उसको बढ़ा सकते हैं. With increasing population, the probable future increase in the demand for agriculture products and to maintain the march to economical progress, it is necessary to arrange the strategy for second green revolution. यानी कि इसी तरीके से आगे बढ़े रहने के लिए और दुनिया के अंदर हमारी मांग बनाए रखने के लिए हमें अर्थव्यवस्था के अंदर दूसरी ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो लानी होगी, जिसकी वजह से हमारी फार्म प्रोडक्ट्स जो है उसका उत्पाद भी बढ़े, दुनिया के अंदर हमारा नाम भी बढ़े और हमारे लोगों की जो फूड की डिमांड है वो भी एप्रोप्रिएट मैनर में सेटिस्फाई हो. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन agriculture. So here students, the lecture is over and the unit is also over. Thank you. We will meet in our next session with a new chapter. Thank you.